آج 21 مارچ 8 بجے شام سے لے کے 2 ہفتے کے لیے پاکستان کے اندر تمام بین الاقوامی جو فلائٹس ہیں پیسنجر فلائٹس وہ نہیں آ سکیں گی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بڑا اقدام، پاکستان نے 2 ہفتے کے لیے بین الاقوامی فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ آج رات 8 بجے سے 4 اپریل تک کے لیے تمام غیر ملکی پروازیں بند رہیں گی۔ بیرون ملک سے تمام جہاز کل صبح تک پاکستان آ جائیں گے۔ مال بردار اور سفارتی روابط فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کورونا وائرس کے وار، پاکستان میں 534 کیسز۔ وائرس سے اب تک 3 افراد کی جان جا چکی ہے، 5 مکمل صحت یاب۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کی تصدیق، بتایا 14 لاکھ افراد کی اسکریننگ ہوئی۔ پنجاب میں آج رات 9 بجے سے منگل کی صبح 9 بجے تک شاپنگ مالز اور پارک سمیت تمام تفریحی مقامات بند۔ پبلک ٹرانسپورٹ، سبزی منڈی، میڈیکل اور کریانہ اسٹورز کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام سے آئندہ 2 روز کے لیے گھروں تک محدود رہنے کی اپیل۔ شہری پکنک منانے کے بجائے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اپیل۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بھی ٹویٹ کیا، کہا کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کے لیے کلیشنکوف سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے جو شرمناک ہے۔ سکھر کے قرنطینہ سینٹر سے 100 متاثرہ افراد سڑکوں پر نکل آئے، سہولیات کی عدم فراہمی پر نعرے۔ انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد متاثرہ افراد قرنطینہ میں واپس چلے گئے۔ مردان کے علاقے منگا میں عوام نے پھر لاک ڈاؤن توڑ دیا۔ اہل علاقہ کا مرکزی شاہراہ پر احتجاج، کام پر نہ جانے سے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، مظاہرین کی دہائی۔ ملک بھر کے لیے ماسک سپلائی کر دیے، آئندہ 10 سے 12 روز میں ٹیسٹ کٹس مل جائیں گی۔ چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی نیوز کانفرنس، کہا قرنطینہ سینٹرز کے لیے مختلف شہروں میں ہوٹلز بک کروائے جا رہے ہیں، ایک آدمی ایک کمرے میں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاک فوج کو سول انتظامیہ کی امداد تیز کرنے کی ہدایت۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے کہا، انفرادی طور پر کورونا وائرس سے بچاؤ کرنا در حقیقت اجتماعی حفاظت ہے، ہر پاکستانی حکومت اور محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کرے۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید 12 کیسز سامنے آ گئے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر کی تصدیق، کہا صوبے میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں۔ حکومت بلوچستان نے بھی شہریوں سے 3 روز تک گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی۔ 12 مزید ٹرینوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت بند کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس، کہا لاک ڈاؤن کا حامی نہیں، ملک میں افراتفری نہ پھیلائی جائے۔ پاک افغان چمن بارڈر سامان کی ترسیل کے لیے کھول دیا گیا، غذائی اجناس سے بھرے درجنوں ٹرک پاکستان سے افغانستان میں داخل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کورونا وائرس 186 ممالک تک پھیل گیا، دنیا بھر میں 2,84,500 سے زائد افراد متاثر، ہلاکتیں 11,800 سے تجاوز کر گئیں۔ یورپ میں صورتحال خراب، اٹلی میں سب سے زیادہ 4,032 ہلاکتیں، اسپین میں 1,300 سے زائد، ایران میں اموات 1,500 سے بڑھ گئیں، فرانس میں 450، برطانیہ میں 177، ہالینڈ میں 30 اور اسرائیل میں بھی پہلی ہلاکت رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کورونا سے 2 اموات ہو گئیں۔ اور چین میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، وائرس کے گڑھ ووہان میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہونے لگے، تیسرے دن بھی کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना पर अपडेट के हवाले से। आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 664 हो गई। मुल्क में आज 200 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज सबसे ज्यादा 89 केसेस सक्खर से रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में भी 77 नए केसेस सामने आए हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 104 तक जा पहुंची, जहां 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज की मजमूई सूरत हाल पर इस वक्त कराची से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कामरान शेख, जबकि लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में कामरान शेख से। जी कामरान शेख, बताइए कराची में इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखी जा रही है? बार बार रात जो है वो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है वो बार बार कह रही है कि लोग घरों तक अपने आप को महदूद रखें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर की? बिल्कुल इमरान, कराची शहर में कहा तो ये जा रहा है कि लोग अपने अपने घरों पर रहें, लेकिन लोगों से जब आज हमारी बात हुई, काफी हद तक तो इस पर अमल दरामद देखने में आया। लेकिन लोगों को ये कहना है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको ज्यादातर परेशानी का सामना है। लेकिन 80% जो है वो हमें ये भी देखने में आया कि कराची में इस वक्त सड़कों पर सन्नाटा सा भी है। आपको अगर केसेस के हवाले से बताऊं तो कराची में एक मजीद केस रिपोर्ट हुआ है। इस तरह कराची में तादाद 101, एक हैदराबाद में केस रिपोर्ट हुआ, और सबसे ज्यादा जो सूबा सिंध से हमारे पास केसेस आए हैं, सक्कर में 89 केसेस जो है वो एक साथ रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए पूरे सिंध की, तो कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 357 तक जा पहुंची है, जिसमें से एक अमवात कराची की है। गुज़िश्ता रोज 77 साला एक शख्स कराची में जाबाक हुए हैं। इसी के साथ जो है वो 3 लोगों को सेहतयाब होना भी बताया गया है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि चूंकि शादी हॉल्स, स्कूल, मदारिस, दरगाहें और जो गैर जरूरी जगहें थी उन तमाम को बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरियात जिंदगी की अशिया जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर मिल सकती हैं, जिनमें मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं, उन्हें खुला रखा गया है। बाकी तमाम जो है वो सड़कों पर सन्नाटा भी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ वो लोग जो कि अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं, वही लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज बहुत ही कम हमें रश देखने में आया। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा पंजाब में इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से मुश्तबा केसेस की क्या तादाद है, तस्दीक शुदा केसेस की क्या तादाद है, और अब तक जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब भर में जो तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद है वो 137 है, जबकि मुश्तबा मरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए उसके हवाले से जो है उसकी तादाद नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है उनका डाटा बहुत ज़्यादा है। और इस सिलसिले में जो है पंजाब हुकूमत के जो हमारे वज़ीर सेहत हैं उनसे भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ जो है कंफर्म केसेस के हवाले से ही जो है आवाम को आगाही दी जाए, क्योंकि अगर मुश्तबा के बारे में जो है आवाम को आगाही दी गई तो आवाम में पैनिक भी फैल सकती है। और मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर पंजाब ने जो है तकरीबन 1.5 घंटा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ये ऐलान किया गया है कि आज रात 9 बजे से लेकर जो है मंगल की सुबह जो है 9 बजे तक जो है तमाम मार्केट, शॉपिंग बाजार, शॉपिंग मॉल और हर किस्म की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। सिर्फ दूध, दही, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल पंप्स, फार्मेसीज, बेकरीज, फ्रूट शॉप, सब्जी और इस किस्म की दुकानें और मंडियां जो हैं वो खुली रहेंगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो खुले जरूर रहेंगे, लेकिन वहां पर जो है बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। टेक अवे जो है वो सिर्फ किया जा सकेगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खुली रहेगी। ताहम ये है, मैं आपको बता दूं कि लाहौर समेत जो है पंजाब भर में इस वक्त जो है वो जो पाबंदी है उस पर ऑलरेडी अमल किया जा रहा है। तकरीबन जो है 30% जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर रहेगी। 70% जो लोग हैं वो अपने घरों में रैश कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर पंजाब ने ये कहा है कि जो ये 2 दिन का जो हमने छुट्टी दी है और घरों से बाहर न निकलने की अपील की है आवाम से, वो इस पर अमल दरामद करें। इस पर जो है आवाम के तावन से जो है कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। अगर आवाम जो है 2 छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो फिर इस छुट्टी का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस छुट्टी को जो है घरों में रहकर गुजारें और ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया सलीम शेख और कामरान शेख, आप दोनों हमें सिंध और पंजाब में अब तक के जो तस्दीक शुदा केसेस और वहां उठाए जाने वाले इकदाम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया कि ये लॉकडाउन नहीं बल्कि समाजी फासला है। सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे से मंगल की सुबह 9 बजे तक मॉल्स और सियाहती मुकामात बंद रहेंगे। ताहम पंजाब में मेडिकल स्टोर्स, करियाना और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपील की है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें और जिम्मेदारी का सबूत दें। आवाम के बेहतर मफाद की खातिर आज पूरे पंजाब में तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और जो सियाहती जगह हैं वो 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए आज रात 9 बजे से मंगल सुबह 9 बजे तक बंद की जा रही हैं। और आवाम की सहूलत की खातिर मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स और टेक अवे और पोल्ट्री सर्विस, फ्रूट, सब्ज़ी मंडियाँ, करियाना स्टोर्स और दूध की दुकानें वगैरह खुली रखी जाएंगी। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में रहें और अपने बच्चों और ख़ानदान को इस बीमारी से बचाएं। और आपसे अपील करूँगा हुकूमत पंजाब के साथ भरपूर ताउन करें और ज़िम्मेदारी होने का सबूत दें। अगले 2 दिन अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान ने अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। एविएशन डिवीजन ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, फ़िज़ाई ऑपरेशन 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। बैनुल-अक़वामी परवाजें 21 मार्च रात 8 बजे से 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। कोई कमर्शियल, चार्टर्ड या प्राइवेट तैयारा पाबंदी के दौरान पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतर नहीं सकेगा। आज 21 मार्च 8 बजे शाम से लेके 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम बैनुल-अक़वामी जो फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स, वो नहीं आ सकेंगी। इसमें तमाम पैसेंजर फ़्लाइट्स, चार्टर फ़्लाइट्स और प्राइवेट फ़्लाइट्स वो शामिल हैं। पाबंदी के दौरान सिर्फ सिफारती या खुसूसी कार्गो तैयारे ही पाकिस्तान में आ सकेंगे।